Very great afternoon, dear students. Our next topic is इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. चाहे बेटा आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं, चाहे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं. इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वी हैव डिस्कस्ड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वी हैव डिस्कस्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, एंड लास्टली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द cause of resistance. So in this topic we have to discuss the electrical resistivity of specific resistance. So students, let's start. It is found that resistance of a conductor is number one directly proportional to length of the conductor. It is found that resistance of a conductor is number one directly proportional to length of a conductor, that is R directly proportional to length of a conductor is equation number 1. Number second, inversely proportional to resistance of a conductor is inversely proportional to area of cross section of inversely proportional to area of cross section of conductor, that is inversely proportional to area of cross section. It is found that resistance of a conductor is directly proportional to length of a conductor and inversely proportional to area of cross section of a conductor. Clear है बेटे? Okay. Now combining 1 and 2. Combining 1 and 2, we get combine करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास combine करने में. Now whenever we remove the proportionality, constant came, R is equal to proportionality को बेटा यहाँ से हटाएंगे, आपके पास आएगा constant R is equal to rho into L upon A. This is equation number 3. R is equal to rho into L upon A, where rho is the आपके पास क्या है? Is the constant of proportionality. Rho is the constant of proportionality and is called as electrical resistivity or specific resistance of material of conductor. Rho आपके पास क्या है? Rho is the constant of proportionality and is called as electrical resistivity or specific resistance of material of conductor. चाहे बेटा आप इसको electrical resistivity कहते हैं, चाहे आप इसको specific resistance कहते हैं. क्लियर है? ओके. अब electrical resistivity है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ से अभी हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया? It is found that resistance of a conductor is directly proportional to length of the conductor, inversely proportional to area of cross section. दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी को हमने रिमूव कर दिया. जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपके पास आया, दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. क्लियर है? नो फ्रॉम 3 रो क्या जाएगा आपके पास? रो
चलो अब इसको ऐसे बढ़ो, ये फ्रॉम थ्री आप देखें, इफ m इज इक्वल टू 1, इफ l इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1, अगर लेंथ आपके पास यूनिटी है, एरिया भी आपके पास यूनिटी है, तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू रो, ये 1 दिस इंप्लाइज r की वैल्यू आपको क्या आएगा, रो, you can say रो इज इक्वल टू r, दिस इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आपने क्या किया, यू हैव टेकन लेंथ, आपने यूनिटी ले ली, एरिया क्रॉस सेक्शन भी आपके पास यूनिटी है, और इस इक्वेशन से r इज इक्वल टू रो, लेंथ यूनिटी, एरिया यूनिटी, r इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू r, तो यहां से बेटा आपके पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो क्या बन जाएगी, तो लेट्स सी, यहां से देखें, from 4 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, from 4 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, of a material of a conductor is the resistance, electrical resistivity or specific resistance of a material of a conductor is the resistance offered by the wire of this material having unit length, that is L is equal to 1, having unit length and unit area of cross section, that is A is equal to, तो यहां से आपके पास क्या गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज द, किसके इक्वल है ये, इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ दिस मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है बेटे, अब इसकी यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, unit and dimensional formula from the relation के आपके पास R is equal to रो into L upon A, तो रो की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास R A upon L, रो is equal to R is equal to रो into L upon A, रो is equal to R A by L, so रो is equal to रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है बेटा, रेजिस्टेंस के ओम, एरिया के मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर, ये कैंसिल आपके पास रो इज इक्वल टू ओम मीटर, तो इसके जो यूनिट बेटा आपके पास आए वो क्या थे, ओम मीटर। क्लियर है, अब आपने निकालना है इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या निकालोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी क्लियर हो गया आपके पास, resistivity or specific resistance of a material of a conductor is the resistance offered by a conductor having unit length and unit area of a cross section। क्लियर है बेटे, आपने यूनिट फाइंड आउट कर ली यहां से, रेजिस्टेंस के ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर, तो वो क्या आपके पास क्या है, ओम मीटर। चले आगे, नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला,
डायमेंशनल फार्मूला के लिए सबसे पहले आप डायमेंशनल फार्मूला निकालें पोटेंशियल डिफरेंस का। बी आपके पास क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। बी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बी के लिए पोटेंशियल जो फार्मूला है वो क्या है, वर्क अपॉन चार्ज। डायमेंशनल फार्मूला लिखने वाले के लिए ml2 t-2, चार्ज के लिए at, क्या हो जाएगा बेटा ये, v इज इक्वल टू ml2 t-3 a-1 m1 l2 t-3 a-1, और r के लिए क्या जाएगा, रेजिस्टेंस पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, r क्या होता है v अपॉन i। तो वोल्टेज के लिए ml2 t-3 a-1, I के लिए आ जाएगा बेटा यहाँ से एम्पियर, ये आपके पास बन गया ml2 t-3 a-2। ये रेजिस्टेंस के लिए आ गया, मीनिंग किसके लिए आ गया, ओम के लिए आ गया। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट है आपके पास ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है आपके पास वो क्या है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी आपके पास है ओम मीटर, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ओम मीटर। ओम के लिए क्या आपके पास डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया ओम के लिए, तो यहां से आपके पास बन गया ml2 t-3 a-2, और मीटर के लिए आपके पास आ जाएगा यहां से L। तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या बनेगा बेटा, m1 l3 t-3 a-2। This is the dimensional formula of the resistivity or the specific resistance। क्लियर है यहां से, ये आपके पास ओम के लिए आया, यूनिट क्या है इसके, ओम मीटर। m1 l2 t-3 a-2, दिस इज द ओम। मीटर के लिए आया तो बन गया m1 l3 t-3 a-2। क्लियर फ्रेंड्स, तो बेटा हमने कहां से स्टार्ट किया, रेजिस्टिविटी का टॉपिक हमने स्टडी किया। रेजिस्टेंस कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंबाइन कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी आपके पास आ गई, रो आपके पास क्या गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज द रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को आपने कैसे डिफाइन कर दिया, रेजिस्टिविटी इज resistivity of material of a conductor is the resistance offered by the wire of this conductor having unit length and unit area of cross section। यूनिट हमने फाइंड आउट किए, क्या यूनिट है इसके, ओम मीटर। डायमेंशनल फार्मूला हमने इसके लिए फाइंड आउट कर दिया, क्या है m1 l3 t-3 a-2। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ओके स्टूडेंट्स।